parents have adapted to the developing situations, the differences in economy, the climate, the schooling, the education, and various factors of our environment. But with the pandemic, there has been a sudden different kind of challenge which is being faced by parents, and everybody is adapting to this. And to discuss this with us today, we have Mrs. Mukta Joshi, who is a career and a behavioral counselor. She is certified by FDRC, IDC, FUEL, CBSE, and ICHAS. She's working as a consultant with school, colleges, and polytechnics, and she is also a sports psychologist with CATFIT. We also have Miss Ruhi Jain, who's a counselor and a parent coach from Dehradun, Uttarakhand. She's working in schools as a counselor, and she's also a she's certified special educator. So she works to maintain mental well-being and mental health of people. So starting the discussion, going ahead, how has parenting evolved over the years? I would just want to know your quick opinions on this, Mrs. Joshi and Ruhi. How has parenting evolved over the period of time, and how has it changed? Okay, Soumita, if I see myself, it's been now I'm into this for last 22 years. Right. So I have a daughter who's 21, and after 5 years I got twin boys. In that only I have found out many changes. Earlier it was difficult to buy one iPad. Now we have so many internet related, and whatever interactions we followed on, it is all because of internet. Even pehle hum face to face we used to share our whatever thought processes, baith ke baat karte the. Abhi now the thing is everything is online, so sometimes if I have to tell my heart to them, I just text them, and it actually reaches to their heart. If I see, I'm on Just Dial, being in Delhi, place like a place where both the parents are working. Every day I'm getting calls in this COVID-19 times because people are caring about their kids' mental health, which earlier it was not there. Earlier, हमारे बच्चों का थे बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को ध्यान देता था. That was a role of a second mother for the child. But now because siblings are not there, they only three parents are there, family members at home. So sharing between the parent and a child is now reduced. So now the thing is age gap. The parent age is growing, and what we call it, if I use that term regularly basis, menopause and all. So energy of a mother is going down, but the energy of a child is growing. So it's not compatible. So now we will be talking on later on screen. Because of screens also, many changes have happened with the child mind, because they are fast and still parents are little slow. So that compatibility also I can say clashes hote hain uske karan. Now eating habits, if we talk about, pehle ke parents bahut conscious the dal roti khao prabhu ke gun gao, but now this is not there. Even parents want something taste buds related to their taste buds, and they serve this thing to their kids. Even they are totally agree with you, Mukta. Totally agree with you. And I request if you can put your screen on little. Yes, your screen is shifted down a bit. Yes. Okay. Thank you. Now, Ruhi, quickly you can share your views too on this. Yes, ma'am. I totally agree what Mukta ma'am has just said. And with this, I would want to add that over the years, parenting has evolved because we are part of 21st century. Everything is moving at a very fast pace. Every second things are changing. So parents have adjusted to few things very nicely, but there are few things that have just come to us and we didn't get enough time for it.
सो इन पेरेंटिंग आई वुड से वन, एक तो हम न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गए फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, सो ये थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके. सेकेंडली बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई हैं. अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, प्रायोरिटीज वर डिफाइंड, fathers were working outside, mothers were taking care of the children in the house. Now we are very glad, I'm a woman myself, I'm very proud of the fact that I am working, but you know iska ek consequence bhi hai that I'm not able to give enough time to my child. तो उस हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, हमने अडेप्ट कर लिया है. और बेस्ट पार्ट पेरेंटिंग इवॉल्वमेंट का ये है कि हम लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं. यू नो फॉर एवरीथिंग वी फील कि अगर हमारे को कोई स्किल शॉर्ट पड़ी है, सो वी कैन ऑलवेज टॉक टू अ प्रोफेशनल और अ मेंटल health professional to take advice and improve. So I think parenting has evolved over years with both positives and negatives, and that's why we are here to work on those negatives. Thank you, Ruhi. Now my first question to Mukta. So Mukta, अभी like the situation जो चल रही है pandemic की, इसमें एक situation ये आ गई है, पहले हम लोग तकलीफ में हुआ करते थे, समय नहीं है, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, एंड नाउ सिचुएशन बिल्कुल अब टर्न डाउन हो गई है. सो अब क्या है, 24/7 आवर्स वी आर टुगेदर, सब एक साथ हैं. तो इससे अभी एक जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो है लैक ऑफ स्पेस, राइट? तो इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है पेरेंटिंग में और चिल्ड्रन में, क्या रिपरकशंस हो रहे हैं इससे? If I take a metro city example of metro city, still we have, you know, B3 BHK, 2 BHK. If I talk about parents, if I talk about parents from army background or for defense, जहाँ पे बहुत short time मिलता है parents को और family को और बच्चों को एक साथ रहने का, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत problem I found out. Recently I got a call. तो वहाँ पे domestic violence बहुत हो रहा है. क्यों हो रहा है? एक ही कमरा है, ठीक है, आउट लिविंग में दे आर स्टेइंग. ड्रीम लेकर एज अ वाइफ और एज अ चाइल्ड टू द फादर आते हैं कि हम लोग एंजॉय करेंगे, वी विल गो आउट कैन में, बट इट इज नॉट हैपनिंग. अभी क्या हो रहा है कि एक ही रूम में द फादर, व्हिच आई फाउंड आउट, ही यूज्ड टू ड्रिंक आउटसाइड, नाउ इट इज हैपनिंग इनसाइड द रूम ओनली. Now Mukta, I would like to know like space जो लोगों की अभी खत्म हो गई है, जी आपस में नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें हमारी स्पेस को कैसे मैनेज करना है? See, it is only adjustment. 3A is very important in life. Adjust, adapt, and live happily. Along with patience also, you have to, if as a parent, you can't show your parents patience to the child. How? Because child बोलने से नहीं सीखता है, वो observe करता है. आप कितना भी बोलेंगे लेकिन child नहीं समझेगा, लेकिन आप जो करेंगे उसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी रूटीन में चेंजेस. थैंक यू मुक्ता, थैंक यू सो मच. सो वी हैव अंडरस्टूड कि स्पेस देनी है, इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, right? Sharing and caring. And you know, Ruhi, I would like to know your perspective कि suddenly like Mrs. Mukta ने भी mention किया कि domestic violence के cases बढ़ रहे हैं, aggression बढ़ रहा है, parents themselves, you know, are having certain emotions. So ऐसे environment में बच्चों के लिए, you know, it's difficult for a child. You know, how do you handle a child in an environment where the emotional environment is very turbulent, very disturbed? तो इसमें बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए? ऐसे में आई वुड से दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनको लिमिट करते हैं कि यू नो ये हमारी बात नहीं समझ पाएगा, अगर हम इसको समझाएंगे तो हमारी परेशानी नहीं समझेगा. सो इट्स ऑल इन योर हेड. फर्स्ट थिंग इज पेरेंट्स थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने, बच्चों को रीजंस दें कि किस वजह से क्या हो रहा है, उनसे कम्युनिकेट करें. जैसे आजकल इतनी न्यूज चैनल्स पे इतनी नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही है, एंजाइटीज फ्लोट कर रही हैं, सो बच्चे भी वो देख रहे हैं. बट आई डोंट थिंक सो 95% फैमिलीज में कोई भी बच्चों से पूछता होगा कि यू नो आपने ये न्यूज देखी, आपको कैसा फील हो रहा है या आप क्या समझ रहे हो. सो हम उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं से इमोशंस उन तक पहुंच रहे हैं, बट द राइट वे टू हैंडल द इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड से, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन द फैमिली. अपने इमोशंस बच्चों को लेबल करो, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उनको एक्सप्लेन करो, एंड आई एम श्योर जब ये रिपीटेडली होता रहेगा तो बच्चे ये जरूर सीख जाएंगे. So communication. So Mukta, I have a question for you. Like this, जो lockdown में not lockdown अभी फिर से impose हुआ है, और इससे parents के ऊपर
उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? बिकॉज आप वर्किंग फ्रॉम होम हो, आपकी सारी जिम्मेदारियां अभी पेरेंट्स पर आ गई हैं, बच्चे भी ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे क्या मेंटल हेल्थ, पेरेंट्स के ऊपर क्या मेंटल हेल्थ हो रही है, क्या असर पड़ रहा है उन पर? डेफिनेटली ये होना ही है, दे हैव टू गो थ्रू इट। मेंटल हेल्थ पे ये असर पड़ रहा है कि दे उनको सब कुछ करने का हो रहा है, उनको फाइनेंशियली भी दे हैव टू बी मैनेजिंग एट होम ओनली, which they never used to disclose it earlier। 3 तरह के पेरेंट होते हैं, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव। तो उनके जो क्राइटेरियाज हैं सोचने की डिफरेंट होते हैं। तो पहले के पेरेंट ये है कि they never used to share their financial crisis with the kids, but now everything in a one room it is happening, they are over listening it। So later on when child asks the same question to the parent कि क्या हमारे पास पैसे नहीं है, क्या पापा आपकी जॉब जाने वाली है, तो इट इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, विच वो एक फादर फिगर होता है ना कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, वो शिवर करता है। दैट फियर फैक्टर इज इन मैन माइंड इज ट्रांसफरिंग टू चाइल्ड माइंड ऑल्सो। तो साइकोलॉजी इमोशंस जो टर्बुलेंस आ रहे हैं उसके कारण वो अपने अग्रेशन के थ्रू, abuse के through, you know, Ruhi will tell कि sometimes in the classroom teachers behave in this manner कि कुछ नहीं क्वेश्चन आता या उसका आंसर नहीं होता तो they generally give shut up call to the child। So what is affecting the self esteem of a child? I would request Mukta, your voice is breaking a lot। I request you take on this question कि mental health पे कैसे असर हो रहा है, पेरेंट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं तो so Ruhi, I would like Mukta, you can take later on। Let's wait for the right weak signal। Okay, take on please। Okay, so now when father is not answering the Y factor of 4G generation's mind, so what is happening is self esteem pe low self esteem we are creating in a child's mind when we are not answering the child। But it's better, my suggestion as a parent also, as a psychologist also, it's always better to share whatever is in your emotion, because you are also human being and child mind is growing। The more you are prioritizing, the more you are giving, futuristic approach, money management, literacy management। आप अभी से देखोगे कि ये crisis कभी भी आ सकता है, we were not prepared for it but it happened। तो जैसे हम मैनेज कर रहे हैं ये चाइल्ड की लाइफ में कभी भी आ सकता है, तो प्री पॉन्ड पहले ही तैयार हो जाएगा आने वाले क्राइसिस के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ शर्म वाली बात है या शेम है कि यू डू नॉट डिस्क्लोज इट टू द चाइल्ड। तो मुक्ता जी आप ये कहना चाह रहे हैं? I would quickly like to have views of Ruhi on this। Ruhi, how do you think the parents' mental health is getting impacted? Mental and emotional health both. I mean, just your quick 2 cents on this। मैम मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ फैमिली में सभी मेंबर्स की इफेक्ट हो रही है, वेदर इट बी पेरेंट्स और चिल्ड्रन। सो जैसे मैंने पहले बोला कि अब ये टाइम है जिसमें हम ये भूल जाए कि ये कब खत्म होगा। अब हमें रियलिटी के साथ जीना है दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस इज गोइंग टू स्टे विद अस। तो अब हमारा फोकस एनर्जी होनी चाहिए कि इसको कैसे डील करें। सो अपने थॉट्स को, अपने एंजाइटीज को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स घर में कम्युनिकेट करें, शेयर करें, मेडिटेशन, योगा, जिससे कि आपकी मसल्स, आपका ब्रेन, आपका माइंड थोड़ा कंट्रोल में आता है, अब वो करें। बच्चे भी अगर आप करेंगे तो बच्चा भी आपके साथ करेगा, चाहे वो आधा अधूरा करे, बट he will or she will get into that trap। Absolutely, yes। So the only thing is talk about it and rationally reasons लेके बच्चों के साथ डील करिए, because this is the time to adjust now, adapt now। So Ruhi, I have another question, that since parents, there's complete lack of space, and parents want their own space and they need their time because they're managing work from home also, and overall it's an environment where everybody has a lot of constraints, so there's been an exponential increase in the screen time of the children। Parents leave them with mobiles on TV, and that's a way to keep them engaged because they cannot go out also at the end of the day। And घर में आप कितनी पढ़ाई कराएंगे बच्चे को, छोटे बच्चों को especially। I would like you to bring out the kind of effects it has on a child। I would like to share your views and your insight on this।
सी व्हाट आई सजेस्ट टू पेरेंट्स इज कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं 6 years 8 years उनके लिए स्क्रीन जितना मिनिमम हो सके उतना बेटर है, बिकॉज जो हम बचपन में सो कर देंगे, वट एवर वी सो इन द चाइल्डहुड इज रीप्ड व्हेन दे ग्रो अप। तो अगर आपने बचपन से ही बच्चे को स्क्रीन की आदत डाली है तो आगे जाके उस स्क्रीन की आदत को छुड़वाना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली कि स्क्रीन से क्या होता है कि जैसे जो बड़े बच्चे हैं जो वीडियो गेम्स खेलने लगे, सब जानते हैं टेम्पल रन है और ऐसे बहुत सारे 3D गेम्स हैं, तो उसमें स्क्रीन बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो हमारे ब्रेन में जब भी कोई ब्रेन यूज होता है तो उसमें एक्टिविटी होती है जो हम वेव्स के थ्रू मेजर करते हैं। तो जब हम ये वाले गेम्स खेलते हैं तो बीटा वेव्स होती हैं, वो एक्टिवेट होती है। तो अगर बच्चा बार बार रिपीटेडली स्क्रीन से ग्लूड है और ये वीडियो गेम्स खेल रहा है तो उसका ब्रेन अपनी वेव चेंज कर लेता है। सो ब्रेन अपने आप को चेंज कर सकता है। सो अब हम पेरेंट्स कंप्लेन करती है कि बच्चे में अटेंशन कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो वो सिर्फ लर्निंग वाली एक्टिविटीज के लिए कम होता है, बिकॉज उसमें उनको उतना मजा नहीं आता, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते जैसे जो पॉइंट्स होते हैं या आप स्टेज क्लियर करते हो, तो इस वजह से बच्चे कॉन्सेंट्रेट कम कर पाते हैं। तो एक तो हमें स्क्रीन को रिस्ट्रिक्ट करना है। आजकल पेरेंट्स खुद स्क्रीन से ग्लूड है, उनको वर्क फ्रॉम होम है, फिर टाइम पास करने के लिए मिडिल एज पेरेंट्स ने भी गेम्स खेलने स्टार्ट कर दिए। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इफ यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, यू कैन नॉट आस्क अ चाइल्ड टू स्टॉप। So yes, so I would also want you to, you know, tell parents who are watching us and who will be watching us, what can they do to correct this? Because now in some cases the damage might have already been done. So what are the corrective actions that can be taken to improve or, you know, to bring back the brain to the original pattern, if I may say so? Yeah, so obviously as I said, हर चीज को टाइम लगता है। ये हैबिट फॉर्म होने में भी टाइम लगा है, तो अनलर्न करने में भी टाइम लगेगा। बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, दैट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी चाइल्ड। सो जस्ट डोंट फॉल इन फ्रंट ऑफ द टैंट्रम्स। आप एक रूल बनाइए घर में जिसमें फ्री स्क्रीन टाइम हो, घर में कोई भी स्क्रीन नहीं देखेगा, यू विल ओनली सिट टुगेदर, टॉक, कम्युनिकेट एंड डिस्कस अबाउट योर डे। सेकेंडली, अगर आप उन्हें स्क्रीन दे रहे हैं, जैसे आजकल सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सो प्रेफर अ बिगर स्क्रीन इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन्स। अगर आपके घर में लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर्स हैं तो प्रेफर करें एक बड़ी स्क्रीन। दूसरा, स्क्रीन से हम जो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि स्क्रीन से 5 times ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए बच्चे का और स्क्रीन का। और एक इल्यूमिनेशन होता है लाइटिंग, तो जितनी स्क्रीन से लाइट आ रही है उससे 3 times ज्यादा लाइटिंग हो, जिससे कि उसकी आईज पे इफेक्ट ना पड़े। उसके साथ आप धीरे धीरे करेंगे तो बच्चा एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि आप उनको बोर्ड गेम्स में अपने साथ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि अगर बच्चे को अकेला छोड़ दोगे कि आप अपने आप कर लो तो वो कभी नहीं करेगा। सो बी विद द चाइल्ड, मेक रूल्स एंड प्रैक्टिस व्हाट यू वांट टू प्रीच। Absolutely. Thank you so much. So Mukta, I would like to ask you now, like we have understood that Ruhi has nicely brought out like gluing to screening, how it is impacting our children and the environment in the house overall. तो हमें ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए overall, like कि जिससे child का overall development? Okay, so if I take a टर्मिनोलॉजी की सोशल एनहांसमेंट, उसका सोशल क्वोशंट बढ़ाना चाहिए। अब एज इट इज ऑनलाइन गेम्स तो खेल रहे हैं, बट दे आर कैपेबल ऑफ सेइंग व्हाट्सएप ऑन अ फोन ओनली, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन आर नॉट हैपनिंग, व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू विद द चाइल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, व्हिच वी कॉल फैमिली टाइम। तो ये आप जरूर कीजिए। एंड इन फैक्ट सी इफ रिलेटिव्स आर अराउंड, cousins used to be earlier a good friends because they are biologically from your cocoon only, तो आपके जो और उनके जितने भी नेचर है somewhat सेम ही होगी, तो they can suggest you better। तो अगर कोविड-19 में आप नहीं भी जा सकते हैं, लॉकडाउन में उन्होंने ये नहीं कहा है कि फैमिली टाइम नहीं होना चाहिए, तो वन आप डिस्टेंस 6 feet दूर आप फैमिली टू फैमिली जा सकते हैं। इफ थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुलता है, go to your cousins, talk to them, let them allow, there is no even push them out towards ground also। अगर जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, साइकिलिंग के लिए उनको भेजना चाहिए। सूर्य नमस्कार which is very effective activity within the environment of home also, वो they should do it। उसमें मसल की भी वो है, it's a kinesthetic kind of a thing, लेकिन जो 12 एक्सरसाइजेस उसके अंदर हैं वो कंसंट्रेशन स्किल्स भी बढ़ाती हैं, आपकी मसल पावर भी बढ़ाती हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती हैं। तो विटामिन डी जो हम सन से लेते हैं, सूर्य नमस्कार अगर आप 10 मिनट सूर्य के सामने करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। घर में अगर आप इफ यू कैन मतलब बाय, गो टू डिकैथलॉन, बाय साइकिल
एंड घर के अंदर वो साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन Okay. यू नो। हाँ, So thank you, Mukta. रूही, what is your view on this? हम overall development के लिए, जैसे मुक्ता ने बताया, उसके और अलावा आप अगर अपना कुछ व्यू शेयर करना चाहें कि हम कैसे कर सकते हैं बच्चे का मैम, इस लॉकडाउन? आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि पेरेंट्स को एक तो ये समझना पड़ेगा कि चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, दे आर पॉसिबल. सो आई हैव समथिंग फॉर द ऑडियंस, जिसमें मैंने ये बताया कि आप अपने पूरे डे की एक्टिविटी को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए. जैसे फर्स्ट हो गया फिजिकल एंगेजमेंट, एकेडमिक एंगेजमेट, एंटरटेनिंग एंगेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव. इन चारों में से आप कोई ना कोई बच्चों के स्केड्यूल में एक्टिविटीज डालें जिससे कि वो बोर भी ना हो. सो इन शॉर्ट आई विल टेल, फिजिकल एंगेजमेंट मतलब उनकी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स में. तो आप उनसे घर में डस्टिंग, अगर वो फ्री हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कैन यू गिव मी योर हेल्प इन डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग. तो उनकी थोड़ा फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगी. अकेडमिक एंगेजमेंट्स उनकी ऑलरेडी हो रही है जो वो स्कूल के साथ कर रहे हैं. उसके अलावा बायजूस ऐप है, वेदांतु ऐप है. छोटे बच्चों के लिए 3-4 इयर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए oxfordowl.co.uk एक वेबसाइट है जिसमें 3 to 4 इयर्स वाले बच्चों के लिए भी ग्रामर, मैथ स्किल्स एनहांस करने के लिए है. सो आप वहां से भी एक्टिविटीज एग्जाम्पल के उस पर ले सकते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट रूही, क्या एक बार आप फिर से दोहरा सकते हैं कौन सी साइट बताई थी आपने? हाँ जी, छोटे बच्चों के लिए जिसमें 3 to 4 इयर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए है oxfordowl.co.uk. तो इवन जब ये लाइव सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद भी हम कमेंट सेक्शन में ऑडियंस के लिए वो छोड़ सकते हैं सो दैट दे कैन रेफर. उसके बाद एंटरटेनिंग एंगेजमेंट्स में आपका है, अब आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ आप स्क्रीन पढ़ाई के लिए देखेंगे. उनका एंटरटेनमेंट, अगर आपने उनको स्क्रीन, टीवी या मोबाइल अलाउ किया है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइप का गेम वो बच्चा खेल रहा है. जैसे मैंने कहा 3D गेम्स बिफोर एज ऑफ 12 इज वेरी हार्मफुल फॉर द ब्रेन. सो अवॉइड 3D गेम्स. 2D गेम्स में भी ब्रेन वर्सिटी एक गेम. रूही, आप बता सकते हैं 3D गेम जैसे कोई एक दो नाम बताएं, लाइक शायद पेरेंट्स को पता ना हो. 3D गेम्स में से पबजी, टेम्पल रन, जिसमें स्क्रीन बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है. आपका प्लेयर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, तो वो थोड़ा सा आईज के लिए और ब्रेन के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है. सो प्रेफर 2D गेम्स. जैसे ब्रेन वर्सिटी एक गेम है और आपका पजल गेम्स हैं जो फोन में आपके होते हैं, तो आप वो खिला सकते हैं. बोर्ड गेम्स पे लेके आइए बच्चों के लिए. हमारे टाइम में बोर्ड गेम्स होते थे एंड वी यूज्ड टू एंजॉय. फैमिली टाइम होता था, कैरम हो गया, चेस हो गया. सो एंटरटेनमेंट. एंड द लास्ट वन इज देयर एजुकेशनल फैक्टर, जिसमें कि वो कुछ नया लर्न करें. सो आप उनको TEDx आजकल बहुत ज्यादा हर जगह कर रहा है जिसमें स्पीकर्स, एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते हैं. सो अगर आपका बच्चा एडोलेसेंट एज में है तो उनको दिखाइए वो TEDx टॉक्स, जिससे कि वो कुछ सीख सके कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. गार्डनिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटल गेम्स, इंस्ट्रूमेंट सीखना हो गया, बिकॉज पहले हमारे पास टाइम नहीं होता था, अब हमारे पास बहुत टाइम है. सो लेट योर चाइल्ड लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है. इन 4 क्वाड्रेंट्स में आप डिवाइड करिए तो बच्चा भी बोर नहीं होगा, उसको अकेला बैठना भी आएगा and you will be able to deal it better. Absolutely. Now I would like to take up some questions from our audience because we have 3-4 questions in fact today. So the first question is, do you think parents have become overprotective about their children now? They are not letting them get exposed to various emotions and struggles of life. I would quickly like to have perspectives of both Mrs. Mukta Joshi and Ms. Ruhi Jain on this. Starting with Mrs. Mukta, please go ahead. I generally say yes, parents have become more conscious about the mental health of a child. Generally ये जो anxiety word है, depression word है, stress word है, commonly सुनने में आया है, तो they are becoming overprotective, which is somewhere, but this taboo is still there. They do not approach the right person. You know, they do not go to psychiatric if it is required, which I request all the parents. अगर हमें कैंसर होता है तो हम कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं. अगर you feel like, you know, I found many cases in this COVID, ADHD with the kids, teenagers ADHD is there, जिसे बोलते हैं attention seeking, because ये generally हमने पाया है जो बच्चे अकेले होते हैं घर में, जिनके siblings होते हैं, still they are at a better position, they can share with each other their emotions parents के साथ, क्योंकि घर में है. लेकिन जिस कोई sibling नहीं है, they do not know what is sharing. अब घर में वो पैम्पर हो रहे हैं लेकिन स्कूल में वो कभी पैम्पर नहीं हुए, because they have never learned how to adjust with group, peer.
So that confusion, because of that, ADHD actually found out many cases, and I recommended them to psychiatrists also, and they started with the medicine, and it is actually helping, because abhi education mein ADHD creates lots of problems. ठीक है, हाँ, तो इट्स बेटर कि अगर पेरेंट्स को भी नॉलेज है, आप उनको लिंक भेजते हो, दे स्टडी एंड दे एक्चुअली अप्रोच द राइट डॉक्टर और अ राइट, तो आई थिंक पेरेंट्स प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इन अ सेंस, मुझे ठीक लगता है. There is no hassle. So another question which is related to this, Ruhi, which I would like you to answer is कि parents बच्चे का perspective or behavior of an overprotected child. You know, how do parents change the perspective and behavior of an overprotective child who has become an introvert and doesn't accept introvert or doesn't effect this defeat over a period of time? Okay. So इसके लिए मैं पहले ये बोलूंगी कि when the child is born, child कुछ नहीं पता होता, बट हम पेरेंट्स आजकल के टाइम में थोड़े हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक वर्ड है जिसमें होता है कि हम हमेशा बच्चे के ऊपर हैं, वो गिरेगा उससे पहले वो कहे मुझे मदद चाहिए, हम जाएंगे, ओ क्या हो गया. So, बच्चा बॉर्न होता है फैमिली में, स्पेशली द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो पेरेंट्स को भी ज्यादा पता नहीं होता, वो एक्साइटेड होते हैं, हम सोचते हैं हम बेस्ट दे, रॉन्ग बिहेवियर कंडीशन करते हैं कि मतलब वो आप उसके टैंट्रम्स झेलते हो, या तो आपको लगता है कि हम इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम दोनों वर्किंग हैं, तो वो गिल्ट फैक्टर होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक रॉन्ग बिहेवियर कंडीशन करते हैं. अगर किसी पेरेंट ने ये रियलाइज किया है कि बच्चे के अंदर कोई रॉन्ग बिहेवियर है जिसको उनको चेंज करना है, सो उसका एक तरीका है टू हेल्प द चाइल्ड अनलर्न द बिहेवियर. आप रूल्स सेट करिए, बच्चे को शुरुआत में बताइए कि सपोज अगर स्क्रीन का एग्जांपल है कि अगर आप स्क्रीन देखोगे, ज्यादा मेरी बात नहीं मानोगे, तो फॉर नेक्स्ट 1 week आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू सी द स्क्रीन. So once you have told the child consequences, वो ज्यादा easily accept करता है. So अगर आपने कोई wrong behavior condition करा है, तो reconditioning is the but right. You know Ruhi, this is easier said than done because बच्चे बहुत जिद्दी भी होते हैं. Absolutely. जिद्दी बच्चों का आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे ना, they don't pay heed to you. उनके लिए रोना और उनके लिए जिद पकड़ना is more convenient, and parent has to accept defeat. So Mukta, I think you're raising your hand. You would like to yeah. It is again the grooming of a parent. You know, I request, parenting is not that easy. It is easy and said done, but you know what you want to tell your child, या observation से ज़्यादा better option और कोई नहीं है. वो जो observe करता है, अगर आप stubborn है तो child will definitely pick up, because अगर वो आपको लगता है कि first time में चीज उसने मांगी है, ये बचपन से ही देखना है, अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप फर्स्ट टाइम में उसके बिना रोने से आप उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, इट्स गुड, ठीक है. लेकिन अगर उसके 10 बारी रोने के बाद आप उसकी उसी सेम इच्छा को पूरी करते हैं, तो वो आपने उसमें ग्रूम किया है, इनकलकेट की है हैबिट, और वो हैबिट 22-21 साल में नहीं चेंज होगी. इट हैज टू बी इनकलकेटेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज. तो मुक्ता इज एब्सोल्युटली राइट. सौम्यता, वो जो लोग कहते हैं ना, पता नहीं किस पे गया है, हाँ, तो ये मिथ ब्रेक होता है कि वो हम पे ही गया है. So, definitely. Yes. Okay, I want to take in a question from Rashi Batra because she had left this question quite a while back. I hope she's still online and watching us. How to develop a habit of doing their own chores fast at 7-year-old? So she means that 7 साल के बच्चे को आप कैसे आदत दिलवा सकते हैं for doing their own work. The previous question was from Sonita Deepthi Kala, and she's saying thank you. You are most welcome, Deepthi. It's our pleasure. So yes, I would just like you to quickly take up this question, that how do you make a 7-year-old independent and start doing their own things? मैम, सो फर्स्ट थिंग हियर दैट आई वुड लाइक टू से इज कि जब बच्चा करने जाता है, तो आज के टाइम में क्या है ना, पेरेंट्स एकदम एक गंदा मत करना. तुम खाने तो बैठ रहे हो, कपड़ों पे नहीं गिरे, जमीन पे नहीं गिरे. खाते खाते एक छोटा बच्चा जब सीख रहा है, वो डेफिनेटली गिराएगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता. और साथ में उनको पोक करते रहेंगे, तुमने जमीन गंदी कर दी, अब से कौन सा इसे. So just let your child live the natural experience. I am guilty of lot of this. We all are. When we realize it later, तब लगता है कि शायद कुछ गलत किया है. So actually I am agreeing with Ruhi. हम लोग क्या करते हैं, perfection की तरफ भागते हैं. जो भी काम होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए, और मेरा बच्चा तो परफेक्ट होना ही चाहिए. भैया, nobody is perfect except. So let your child get an opportunity to do
उसे अपने हिसाब से करने दो, जहां पर आपको लगता है यू नीड टू इंटरवीन, आपको बीच में बोलने की जरूरत है, तभी आप बोले, तभी आपकी बात को वो मानेगा भी, वरना उसको लगेगा ये तो पूरे टाइम ही बोलती रहती है, या फिर फादर पूरे टाइम ही नैग करता रहता है। सो विथ टाइम ये हो जाएगा। और साथ में स्टार्टिंग में अगर आपने बच्चे की हेल्प कर दी, सो आई डोंट थिंक सो इट्स समथिंग रॉन्ग। अगर कोई बच्चा नया काम कर रहा है, जस्ट बी देयर, whoever parent, father, mother is available, you can help the child do it, and with time आप उसे मोटिवेट करिए, आप उसको प्रेज करिए, एंड फॉर द राइट थिंग। अगर उसने रोटी का बाइट सही खाया है तो आप ये कहिए तुमने आज बाइट बहुत अच्छा तोड़ा, ये नहीं तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुम तो हमें बहुत प्राउड करती हो। तो एक सूडो इमेज बन जाती है बच्चे के दिमाग में कि मैं तो सब अच्छा करता हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप किस चीज को प्रेज कर रहे हैं। So what I understand is making a child independent is a step-by-step process. It's a process of giving habits and making them capable of doing themselves. So छोटी-छोटी चीजों से start करिए, and it's a process. So another question from Supriya Anthony in our comments: is it right to relate things with reward for children, or should it be positive reinforcement? Mrs. Mukta Joshi, if you'd like to take this question, please. Reward and punishment, it should go simultaneously. ठीक है, when he actually do whatever you are expecting, expectation should not be there. Usually हम लोग उनसे बहुत ज्यादा expect करते हैं, and you want कि जो मैंने expect किया है, the result should be the same. अगर 5% और 10% भी वो आपके मतलब whatever you feel that it is right, that reward system can be applied on a, but for everything, small things, we should not do this thing, because then when they'll start going for working, जो बच्चा सीखता है वो घर की सोसाइटी में, सोसाइटी इज organization, home is a first organization where a child learns everything, sharing, caring, accepting, adjusting, adapting, वही जाके वो सोसाइटी को बाहर देता है। पर अब जब जैसे हल्की हल्की जॉब पे अगर हम करें तो हर जगह तो आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू द जॉब विच दे हैव गिवन इन अ लिमिटेड टाइम, तो वो हर चीज के लिए तो दे विल नॉट कम यू गिव यू 100 रुपीज और 1000 रुपीज एड ऑन टू योर, तो वो भी हैबिट नहीं डालना है। तो आप देखिए रिवॉर्ड कहाँ देना है विच इज एक्चुअली गुड फॉर देयर ग्रोथ, तो वहां पे रिवॉर्ड इन्फोर्समेंट। तो आई टोटली एग्री विद मुक्ता कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बैलेंस रखें, और रिवॉर्ड, too much reward is also harmful, and punishment is also, please अदरक की तरह ना कूटे। नहीं, yeah, absolutely, Suman. What I feel, abuse, abuse starts at home only, and accepting by the child that abuse in the school by the peers, he has learned from home only. क्यों? जब हम कहते हैं फैमिली में मदर को फादर ने मार दिया, तो he has seen that thing in that home, वो बाहर भी अगर उसके peers उसको मार रहे हैं, he is accepting that thing. तो वो हम जो भी घर में दिखा रहे हैं, बच्चा वही बाहर एक्सेप्ट भी कर रहा है। अगर हाँ से लर्न टू से नो, चाहे वो फादर मदर है, अगर बच्चे ने नो आपको गलत चीज के लिए बोल दिया है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है, उसके लिए आप, क्योंकि आपका राइट नहीं है पेरेंट, एज अ पेरेंट बच्चे के ऊपर कि जो मैंने बोले, लेकिन पहले के जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आंख दिखाते थे, and we used to say yes. Now we are more of friends, yeah. Friends, yeah. So now we are heading towards the end, and I would quickly request Ruhi and then Mrs. Joshi to give their last parting advice to their parents on how to handle parenting their own selves and their children in these challenging times. What would be your advice, Ruhi? Okay, so I would say to the parents कि सबसे पहले, because everything in this generation is also new for us, तो पहले आप खुद की चीजों को प्रायोरिटाइज करें कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट वर्क ऑन योरसेल्फ। हमारे लिए मी टाइम बहुत जरूरी है, बट मेरे हिसाब से मी टाइम एक सब्जेक्टिव मीनिंग के साथ है। अगर मेरे रिलेशंस इंटैक्ट हैं तो मैं वो मी टाइम एंजॉय करूंगी कि हाँ मेरे लिए टाइम है। अगर मेरे पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ रिलेशन इंटैक्ट नहीं है तो वो मी टाइम मुझे कहीं ना कहीं चोक करेगा। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मीनिंग। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दीजिए, उनको राइट चीज में मोटिवेट करिए। जैसे मुक्ता मैम ने कहा कि अगर आप पहले ही बोल दोगे कि तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगा या दूंगी, सो इट्स अ ब्राइब।
बट अगर आप खुश होके बच्चे को अनएक्सपेक्टेडली देते हो कि आई एम टुडे वेरी हैप्पी, सो दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, एंड ट्राई नॉट टू गिव मटीरियलिस्टिक थिंग्स की टॉफी, चॉकलेट, पैसे, ये सब नहीं, बट अ पैट कभी नहीं देते, हग नहीं देते, पैट नहीं देते, सो ट्राई टू कीप दीज थिंग्स, आप इमोशनली भी कनेक्ट कर पाएंगे. Absolutely. Thank you. You said a very beautiful thing there, that your me time will choke you if you don't have, a good relation with your children and your family. So yes, that's a very relevant point. Ma'am, your first foremost thing is I request all the parents, जैसे me time बोला है या space है, बच्चों के उठने से पहले you must do your course, like go for walk, go for yoga. ऐसा नहीं है लॉकडाउन पे आप नहीं जा सकते हैं, अगर 6 फीट की दूरी पे आप मास्क लगा के जा रहे हैं तो यू डेफिनेटली गो फॉर गुड 45 मिनट्स वॉक, अपना योगा कीजिए, अपना अगेन विद द पेरेंट, एज अ पेरेंट एंड यू पेरेंट, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्लीप वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है रात के 12-12, 1-1 बजे दे आर टेक्सिंग मी, सुबह मैं देखती हूँ तो मैसेज आया होता है, तो देन यू आर नॉट स्लीपिंग, हाउ यू कैन मोटिवेट योर चाइल्ड. तो अपना रूटीन टाइमली सोएं, ठीक है. देन प्रैक्टिस सेफ गुड फूड हाइजीन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्वालिटी टाइम विद योर किड्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे गाना गाएं, चाहे डांस करें, बट यू मस्ट शो योर स्किल्स टू ईच अदर. कुछ एक्टिविटीज ऐसी घर में, जैसे स्पीकिंग स्किल्स के लिए बढ़ाने के लिए आप वन टाइम, जैसे TEDx इसने बोला है, व्हाई वी वांट टू सी अदर्स, why we can't motivate Ruhi, our kids to be a TEDx speakers by giving them some kind of a topic. Tomorrow in the evening we will speak on this topic and we can have a kind of a debate, ठीक है. So debate करके we'll be enhancing their general knowledge on that particular topic. So what is happening around, it will be clear in their mind. Second is in COVID-19 time पे anxiety को भगाने के लिए doodles, draw some kind of a thing, color, yes. Color affects your neuroplasticity, as Ruhi has explained me earlier. So it actually gives good impact on your whatever आपके mind में चल रहा है, when you draw it comes on a paper. Then diary writing is there. Inculcate this habit in a child before sleeping. Write something about, because you never know तुम आपका बच्चा कल को क्या बनने वाला है, तो लोग बायोग्राफी लिखेंगे आपकी या आप अपनी बायोग्राफी, there should be something written behind. तो हम उसको देखकर कुछ किताबें लिख सकते हैं. तो you can inculcate this habit in them. Solitaire is there, कार्ड गेम्स जो हम खेलते हैं बच्चों के साथ, आप खेल सकते हैं. फ्लैश गेम्स आर देयर जो हम बच्चों के साथ, which we must play. या exercises just to see stamina किसमें है, to motivate them. Okay, I'll give 10 chin-ups. So इस तरह से बच्चे energized पे होते हैं. They come out of their screen time also. And for personal hygiene, very important. Teenagers do not take bath. बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको जबरदस्ती दे देते हैं, बट मोटिवेट दिस थिंग. अगर आपने बचपन से ही उसको सुबह नहाने की हैबिट, डेफिनेटली दे विल हैव दिस थिंग. बट अगर नहीं करते हैं, यू मस्ट डू इट, बिकॉज कोविड-19 में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाइजीन, बॉडी हाइजीन. आप स्वेट आउट करते हैं, आपको पता नहीं पर, ठीक है, वो एलर्जीज हो जाएंगी. यू कांट गो टू डॉक्टर, यू डोंट हैव एनीथिंग एट होम. होम रेमेडीज से कुछ नहीं होगा. इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर टू हैंडल. तो बेटर है कि आप उनको नहाने के लिए बताएं. देन एज आई सेड, क्वालिटी स्लीप इज मस्ट. विटामिन डी इज मस्ट. विटामिन डी सूरज की रोशनी से आती है, विच यू हैव टू हैव इट, बिकॉज आपके इम्यूनिटी के लिए भी, स्लीप ऑर्डर के लिए भी विटामिन डी इज वेरी गुड. कैल्शियम के लिए फॉस्फोरस इन योर बॉडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें न्यूट्रिएंट्स बच्चों के एड ऑन काउंट नहीं करना है. तुमने विटामिन ए खा लिया, बी खा लिया, सी खा लिया, रादर देन गिविंग टैबलेट्स. एलिमेंट्स खिलाओ उनको, भिगोकर खिलाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हेड टू टो के लिए बहुत ज्यादा है. तो इस तरह की आप चीजें करेंगे, बच्चों को भी आप जितना कम्युनिकेटिव बनाएंगे, क्योंकि एज अ करियर काउंसलर मैं ये फील करती हूँ, जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है. एंड एवरी करियर wants that you should speak. If you can't show your product, you can't be sell out.
So we have some audience communicate- members saying that we agree, and that is how we realize the importance of joint families, because that's when people used to take care of each other. Now it's very difficult for working parents to do it all alone, you know. Now another question is this is the last question we're going to be taking, and then Suman ma'am will conclude the session for us. Please bring out, is nature or nurture, what is it that shapes a child? So I would start saying कि nature और nurture दोनों important है. Genetically जो हमारी family में run कर रहा है वो हम उसको overdo नहीं कर सकते. That is there. अब हमारे पास जो अंदर है उसको हमें कैसे शेप करना है वो नेचर लाता है. हम किस टाइप के एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं बच्चों को, हम किस तरीके से बच्चे को ग्रो कर रहे हैं, वो शेप हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो शाय है अगर स्टार्टिंग में, और हम उसको पूरे टाइम टैग नहीं करें किसी के सामने. अब जनरली में क्या होता है कि पहले तो हम खुद को समझाते हैं बच्चा शाय है, बच्चा शाय है. फिर हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो बोलते हैं ये खाने के लिए नहीं मांगेगा, मुझे देना है क्योंकि बच्चा शाय है, बच्चा शाय है. तो हमने खुद को बोला, दूसरे को ये नैरेटिव सुनाया, और फिर घर पे आके हम बच्चे को बोलते हैं तुम शाय हो, तुम शाय हो, शाय हो. बेसिकली हम सबने वो नैरेटिव एक्सचेंज कर लिया है, एंड द मेन प्रॉब्लम स्टिल इज देयर. सो इंस्टेड ऑफ टैगिंग, बी विद द चाइल्ड, उसको आप लेके जाओ. एक दो बार भी अगर उसने इनिशिएटिव लिया है, सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दैट चाइल्ड कि उसने खुद से लिया. सो नर्चर को आप जो आपके जेनेटिकली है आप उसको निकाल नहीं सकते, बट डेफिनेटली नेचर से आप उसको शेप जरूर कर सकते हो आप उसे एनवायरनमेंट से. Thank you, Ruby. So thank you, lovely panelists and viewers. We had a very good, insightful time today. तो ये बात तो साबित हो जाती है, रूही ने बोल ही दिया है कि हम बहुत रीइंफोर्स करते हैं बच्चों को. पहली बात तो ये है कि बच्चों को प्लीज ट्रीट एज मिनी अडल्ट्स. Absolutely. They have same kind of feeling, emotions what we have. Yes. बस only thing is कि हमारी उन पर अथॉरिटी, इसका मतलब नहीं हम जैसे चाहे ट्रीट करें, right? So today we are concluding our session with so now we have understood parenting challenges. Actually parenting, whether it's pandemic or not, parenting itself is a challenging responsibility. So with our I'll quickly sum it up. पेरेंटिंग अच्छी और बुरी कुछ थम रूल्स नहीं होते. आपको बस सिंपलिसिटी से लाइफ जीनी है. सेट गुड रूटीन, बी पॉजिटिव विद योर चिल्ड्रन एंड विद योर माइंडसेट, बी पॉजिटिव माइंडसेट, एंड देन हेल्प योर चाइल्ड. नाउ वी आर इन न्यूक्लियर फैमिली, सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ईच अदर, because we are there for each other, nobody will come from outside. And finally I would like to say, to reduce the screening time, why it is important, because you are actually killing your child's thinking capabilities. So involve with them in your board games, routine activity, physical activities. And finally parenting, एक कहा जाता है ना कि माता पिता भगवान के समान है. So look at that way कि what we are shaping up our child, we are shaping our child, our environment shaping up our child. So create beautiful, positive, growing environment for our child. Thank you so much, everyone. It's a step-by-step process. Do it very consciously. Thank you so much for joining us, Mrs. Mukta Joshi and Ruhi. Thank you so much, audience, for watching and participating in this. Thank you so much. Thank you so much, Suman ma'am, for having us here. So good parenting for all of us. Yes. Happy parenting. Happy parenting. Happy parenting. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.